Welcome students in the third video of science for class 7 chapter 6 acids, bases and salt. Students, in this video we shall learn about neutralization. Even about this we have read as well as we have seen a practical in first video. Neutralization is a reaction in which an acid combines with a base to produce salt and water. मीन्स यह ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें हम एसिड को बेस के साथ प्रतिक्रिया कराकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट और वाटर की प्राप्ति करते हैं. एज एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एन एसिड HCl. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid is joined with NaOH. NaOH means sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Then they form a salt NaCl. Means sodium chloride and water means H2O. So here the acid HCl joined with a base NaOH. Now chlorine just combine with sodium and it form a salt NaCl. So here salt is neutral substance. अब इस सॉल्ट में न एसिड का गुण है न बेस का गुण है. बट व्हेन it is possible when both acids and base are joined in appropriate amount. अगर दोनों की मात्रा बराबर होगी तो वैसी स्थिति में हमें जो सॉल्ट प्राप्त होगा वह न्यूट्रल होगा. बट समटाइम्स ड्यूरिंग रिएक्शन, if acid or base any of them be in maximum amount, then the created salt will be acidic salt or basic salt. अर्थात जब प्रतिक्रिया के दौरान हो सकता है कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए या हो सकता है बेस की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्ट मिलेगा वह एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट होगा. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर गिवन फॉर द रिएक्शन. सो स्टूडेंट, देयर आर मेनी यूजेज ऑफ दिस रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. प्राय आप देखते होंगे कि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें इनडाइजेशन की शिकायत हो जाती है, अपच की शिकायत हो जाती है. वैसे स्थिति हम क्या करते हैं, हम कोई इनडाइजेशन की दवा ले लेते हैं. यहां क्या होता है, वास्तव में जब हम अधिक तेल मसाला वाली चीजों को खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे पेट में एसिड तैयार हो जाता है और तब हम अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में जब हम एक बेसिक सॉल्यूशन वाले
दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वह बेस जाकर हमारे पेट में पैदा हुए एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यहां जो सॉल्ट तैयार होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी कीट पतंग के काट लेने से हमें जो दाग धब्बे हो जाते हैं या वहां एक घाव हो जाता है उनके एसिडिक रिएक्शन के कारण, तो वहां भी हम कुछ ऐसी चीजों को मसलते हैं जिसमें बेसिक का गुण होता है। सो अबाउट दिस वी विल लर्न मोर बाय आवर बुक and know something with the help of our text. So let's read and know something more. So far we have learned about the color changes of various indicators with acids and bases. Let us now see what happens if we mix an acid with a base. Acids and bases, when mixed in right amounts, neutralize each other, as an activity has been given here about which we have discussed just now. When dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide are mixed in just right amounts, the acid and base neutralize each other and resulting liquid is neutral. जैसा भी मैंने जस्ट आपको बताया कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को उचित मात्रा में मिलाते हैं तो जो लिक्विड मिलता है वह कैसा होता है? सॉल्टी यानी लवण होता है। और इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। When the solution is acidic, phenolphthalein remains colorless, and when the solution is basic, phenolphthalein turns pink. Even the testing can be done with other substances also. In a neutralization reaction, heat is evolved. यानी जब भी हम उदासीनीकरण की क्रिया कराते हैं तो उससे हमें सॉल्ट तो मिलता ही है, वाटर तो मिलता ही है, साथ में एक हीट की प्राप्ति भी होती है। A substance called salt along with water is produced. A reaction in which an acid combines with a base to form salt and water is called a neutralization reaction. Students, just I'll skip this part and go forward. Students, I mentioned you also that in our daily life the neutralization reaction plays an important role. So there are some of the reactions and uses given as below in the treatment of soil. Farmers usually need to change the nature of soil so that their crops can grow well. Certain plants do not grow well if the soil is acidic. So soil may get acidic due to acid rain or by the use of excessive fertilizers. और कभी कभी एसिडिक रेन के कारण भी या प्राय हम कई तरह के फर्टिलाइजर्स उर्वरक को इस्तेमाल करते हैं। सो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अ बेस लाइक सिलेक्ट लाइम और क्विक लाइम। यानी इसको हम चूना से, जैसे चूना आपने देखा होगा खेतों में लोग चूना छिड़क देते हैं, तो चूना क्या है? एक बेस है एंड इट रिएक्ट विथ एसिड एंड मेक द soil neutralized
and it again just regain its fertility. On the other hand, if the soil is too basic, it is treated by adding organic matter which releases acids. This helps in neutralizing the basic soil. In the treatment of tooth decay, यानी जब दांत सड़ते हैं वैसी स्थिति में क्या होता है, tooth decay is caused due to an acid that is produced by bacteria present in our mouth. If we do not clean our teeth properly, the bits of food remain between our teeth. ऐसा प्राय होता है, हम कुछ वैसे भोजन करते हैं जो चिपचिपे होते हैं, जो आसानी से हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। तो वैसी स्थिति में उन चिपके हुए पदार्थों से कुछ बैक्टीरिया जन्म लेते हैं that cannot be seen by our eyes and they start decaying our tooth. Certain bacteria live on these bits of food and produce acid. This acid is the cause of tooth decay. Toothpaste are basic in nature and neutralize this acid and thus help in preventing tooth decay. इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वह बेसिक नेचर का होता है। इस तरह से जब भोजन के कण हमारे दांतों में सट जाते हैं तो वहाँ जो एसिड पैदा होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये टूथपेस्ट हमारे बैक्टीरिया को हटाते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूट्रलाइज करते हैं उनको और फिर बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाता है। इन ट्रीटिंग इन डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक. दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग राइट कंडीशन टू डाइजेस्ट आवर फूड. It also kills germs that might make us ill if a person overeats. Too much acid is produced in the stomach. This causes indigestion. About this I talked earlier कि कभी कभी हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो भी इंडाइजेशन शिकार हो जाते हैं, जिससे हम असहज महसूस करते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है, हम कुछ इंडाइजेशन की गोलियां ले लेते हैं और टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म इन द स्टोमक एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स अ बेस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का बेस होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है. In treating an ant or a bee sting, in the sting of an ant and a bee is acidic as it contains formic acid. कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को चींटी काट लेती या बीज मधुमक्खियां काट लेती तो वहां पर क्या होता है, वह स्किन फूल जाता है क्योंकि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है और जब हमारी स्किन से प्रतिक्रिया करते हैं तो उस जगह को एक स्वेलिंग में बदल देते हैं. द पेन कॉज्ड ड्यू टू एन एंट स्टिंग और अ बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग बेसेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलामाइन लोशन. अब उस जगह पर जो पेन होता है या स्वेलिंग हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं जो वास्तव में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या कैलामाइन लोशन होता है. इन ट्रीटिंग अ वास्प स्टिंग, द स्टिंग ऑफ अ वास्प इज बेसिक इन नेचर. यानी वास्प का जो डंक होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, जबकि एंट और बी स्टिंग में क्या आपने देखा, वह एसिडिक होता है. द पेन कॉज ड्यू टू वास्प स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विनेगर एज इट कंटेन्स अ मिल्ड एसिड कॉल्ड एसिटिक एसिड. अब चूंकि वास्प स्टिंग का नेचर कैसा है, बेसिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एसिड.
तो वैसी स्थिति में हम विनेगर का यूज करते हैं, इसमें थोड़े एसिड, जो एसिटिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं, वो होते हैं। इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स। इफ these are allowed to flow directly into rivers or lakes, the acids may harm the aquatic plants and animals. So to avoid this, factory waste are usually treated with a base. चूंकि फैक्ट्रियों के जो मलबे होते हैं, गंदगी होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, और इसलिए जब ये नदियों, तालाबों, झीलों में जब जाते हैं तो वहाँ के पौधे और जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसलिए हमें क्या चाहिए कि जब उनको नदियों में फेंकने से पहले, भेजने से पहले बेसिक सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, ताकि वह अक्रिय हो जाए और हमारे जीव जंतुओं का जीवन। स्टूडेंट्स, thus our chapter is over and the question answer will be given in the next video. Thank you.